اس ویڈیو کو یہ جو ہم نے مشن بلوچستان یا سیف بلوچستان کو سٹارٹ کیا ہے، اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بلوچ کمیونٹی کی، پاکستان کے جو بلوچ ہیں ان کی آواز پہنچانی ہے، انسانیت کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ ہم بلوچ کمیونٹی کے ساتھ موجود ہیں جو تقریباً آج پورے 60 دن ہو چکے ہیں، وہ یہاں پہ دھرنے پہ موجود ہیں۔ کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف ڈیمانڈ یہ ہے اس ننھی بچی کی کہ مجھے میرے فادر سے ملایا جائے۔ یہ میرے ساتھ بہن کھڑی ہے، کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں یونیورسٹی بھیجا جائے، ہمیں کالج بھیجا جائے، ہمیں یہ دیا جائے وہ دیا جائے۔ ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی سے ملا دیا جائے۔ مسنگ پرسن ہے، آخر کیا ان کا ایشو ہے، کیا ان کے جو بھی مطلب اگر ان کی کوئی مسٹیک ہے تو آخر عدالت میں لے جائیں، وہاں پہ فیصلہ سنائیں، انہیں بھی بتائیں، پورے پاکستان کو بتائیں۔ لیکن جب مسنگ پرسن اس طریقے سے ہوگا، یہ ننھی بچی اپنے والد کا انتظار کر رہی ہے، یہ میری بہن اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ درد اللہ نہ کرے کسی اور کو فیس کرنا پڑے، اللہ نہ کرے کسی کو بھی، کسی دشمن کو بھی یہ درد فیس کرنا پڑے جو یہ فیس کر رہی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ آخر 60 دن سے اس ٹھٹرتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے یہ جو موجود ہیں، کیا پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے جو مطلب جو بھی پاورفل لوگ ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ سن رہے ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم میری بہن۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں شرمندہ ہوں کہ مطلب ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ایز اے یوٹیوبر، ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے ہیومن بینگ میں شرمندہ ہوں کہ پاکستان کا شہری ہوں، آپ بھی پاکستان کی شہری ہیں، لیکن ہم شاید اس طریقے سے آپ کی آواز نہیں اٹھا پا رہے، ہم اس طریقے سے آپ کے درد کو پوری دنیا تک یا پاکستان کے پاورفل لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت شرمندہ ہوں، اور شاید میری طرف سے تمام، میں یہ کہوں گا کہ تمام میڈیا کی طرف سے میں شرمندہ ہوں۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ 60 دن سے یہاں پہ موجود ہیں، یہ میری ننھی سی بیٹی، میری بہن 60 دن سے یہاں پہ موجود ہے، کیا مطالبات کیا ہیں، کیا ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ السلام علیکم، میرا نام حاجرہ بلوچ ہے، میں لاپتہ بولان کریم کی بہن ہوں۔ میرے بھائی کو 4 جنوری 2013 شام کے 4 بجے پسنی ایئرپورٹ کے مقام سے ایجنسی والوں نے اغوا کیا تھا۔ اس وقت میرے بھائی کی عمر 16 سال تھا، وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ہم نے اپنے بھائی کی گمشدگی کے FIR بھی پسنی کے تھانے میں درج کیے اور ان گواہوں کو بھی پیش کیے جو اس وقت میرے بھائی کے ساتھ تھے۔ کوئٹہ گوادر کمشنر کے سامنے بھی پیش ہوئے، لیکن آج تک ہمیں قطر تک بھی جواب نہیں مل کہ میرے بھائی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اسلام آباد آنے کا مقصد چیف جسٹس صاحب اس کورٹ نوٹس لیں اور میرے بھائی کی بازیابی کو یقینی بنائیں۔ 60 دن سے آپ موجود ہیں، چیف جسٹس صاحب، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ پاکستان کے پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں نوال الحق کاکڑ صاحب، وہ بھی بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو کیا وہ یہاں پہ آئے؟ کیا انہوں نے آپ کی آواز سنی؟ کیا انہوں نے آپ کو کوئی تھوڑی تسلی دی کہ میری بہن، میرا بیٹا، ہم آپ کے بھائیوں کو واپس لے کر آئیں گے؟ نہیں، شاید اسلام آباد اور پنڈی کی ٹھنڈی ہواؤں نے چیف جسٹس صاحب کو اتنا ٹھنڈا کر دیا کہ نہ ہی وہ ہم کو سن پا رہا ہے اور نہ ہی دیکھ پا رہا ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب آپ کی اس خاموشی کو تاریخ دان بھی لکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آج یہ بچی جس کو یہ سوچنے کا اس کی ایج ہے کہ بھائی میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر، جس کی یہ سوچنے کی ایج ہے کہ بھائی میں نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بات کرنی ہے، آج وہ بات کر رہی ہے اپنے بھائی کے لیے، گم شدہ بھائی کے لیے۔ کیا یہ پاکستان کا فیوچر ہے؟ کیا یہ بلوچستان کا فیوچر ہے؟ اور پھر جو لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، میرے جیسے جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے، انہیں بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فارن ایجنڈے پہ آپ کو۔ اچھا، یہ فارن ایجنڈے کا مطلب پتہ ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ مجھے تو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے آپ کو یہ نہیں پتہ؟ اب میں تو گھر میں رہتی ہوں، میں تو فرسٹ ایئر کے بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا کام ہے پڑھنا، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر یہاں پر آئی ہوں، مجھے نہ ہی ان سب سے لینا دینا ہو، نہ ہی ان کا مطلب پتہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کے جو، اور یہ آپ کو پاکستان سے کوئی نفرت ہے؟ مجھے تو نفرت نہیں ہے، لیکن پاکستان یہی دکھا رہی ہے کہ ہمیں بلوچستان سے نفرت ہے، وہ اپنے رشتہ بتا رہی ہے ہم سے۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں ہیں، اور بہت سے، میں یقین مانے، بچی ہے، میں اس طریقے سے بات نہیں کروں گا، ان کے ساتھ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا یا مطلب ان کی جو گفتگو ہے وہ کسی کے لیے بھی مسئلے کا باعث بنے۔ یہ بچی سے بھی، چھوٹی بچی سے بات کریں گے، اور اچھا پہلے مجھے بتائیں، آپ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ گیس پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پنجاب میں جو گیس یوز ہوتی ہے بلوچستان سے آتی ہے۔ کیا آپ کے گھر میں گیس ہے؟ سچ بتائیے گا، جھوٹ نہ بولیے۔ میرے گھر میں چھوڑو، میں پھر بھی گوادر کی رہنے والی ہوں، بسنی کی رہنے والی ہوں ضلع، تو کھولوں میں گیس نکلتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں لکڑی جلاتے ہیں، ان کے پاس گیس نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ایریا میں کوئی میڈیکل کالج ہے؟ ہمارے ایریا میں تو پڑھائی کی زیادہ سسٹم بھی نہیں ہے، لوگ پڑھنے کے لیے اسلام آباد اور کوئٹہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سروسز وغیرہ کوئی 4G، کوئی 3G، کوئی ایسا ہے؟
नई 4G हैं वो भी सुस्त है। बलूचिस्तान जो है ज़राओं से ये बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है, डायमंड है बलूचिस्तान, लेकिन बलूचिस्तान के जो आवाम हैं ये आवाम जो है इन सब चीज़ों से महरूम है। हम फिर भी यहाँ आकर उनके ये जो हमारे बलूचिस्तान के ज़राए हैं इनको लेने नहीं पर आए बात हैं। नहीं कर रहे। ये मैं चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि देखें यहाँ पे ये लोग ये नहीं कह रहे कि हमारी गैस हमें दे दो, हमारी जो है वो कोयला हमें दे दो, ये तो कह रहे हैं हमारा भाई हम दे। नौकरी भी नहीं चाहेंगे। हम अच्छा। अपनी झोंपड़ी में 2 वक्त की रोटियां खाकर बहुत खुश हैं। बस हमारी है कि मुतालिबा कि हमारे भाइयों को बाज़ियाब किया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको बताया अपने जाए। ही अदालत में पेश करें सबूतों के साथ। उनको उम्र कैद चाहे सज़ा दे या उनको 10 साल सज़ा दे, 1 साल सज़ा दे, उम्र कैद ही दे, लेकिन उनको अदालत में तो पेश करें। हम इसके एक दीद के लिए तरस रहे हैं। ये एक फ़ोटो 1 मिनट दिखाइएगा। क्या ये मैट्रिक का स्टूडेंट मतलब किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है? लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए मानते हैं कि ये किसी इलीगल एक्टिविटी में, किसी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा, तो क्या मैट्रिक का स्टूडेंट जिसकी 16 साल 15 16 17 साल एज होती है, क्या उसके ऊपर इतना कोई बड़ा फ़र्द जुर्म आयद हो गया कि उसे उठा ही लिया गया? मैं ये समझता हूँ कि शायद उठाने की बजाय अगर समझाया जाता तो आज काउंसलिंग की जाती, उन्हें एजुकेशन दी जाती, उन्हें अवेयर किया जाता, तो शायद आज यहाँ पे ये कैंप ना लगता। आज हमें ये ना कहना पड़ता कि ओहो पूरी दुनिया में बलूचिस्तान की वजह से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, ये लोग ये मतलब अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। काश कि 2010 में अगर इसको उठाया गया है तो 2013 में उठाया गया जी 2013 में अगर इसे उठाया गया है तो शायद काश उठाने की बजाय एजुकेट किया जाता, उन्हें इसे ये बताया जाता बच्चे आपने आगे डॉक्टर बनना है, आपने आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन वो बात नहीं की गई। शायद इसी वजह से आज ये सिचुएशन मौजूद है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बच्ची अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक हो? वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयशा। ये जो आपने ये फ़ोटो पकड़ी है ये कौन है? मैं अब्बू। अब्बू। ये कितनी देर से आपने इन्हें नहीं देखा? कितनी देर से आप मतलब अपने अब्बू का इंतज़ार कर रही हो? 5 साल। 5 साल। इसकी एज क्या है? 11 साल, 10 साल ख़त्म हो गए हैं। ओहो हो, मतलब ये देखिएगा आपके 5 साल से वो अपने वालिद का इंतज़ार कर रही हैं, 11 साल टोटल एज है। तो क्या हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कितने दुख की बात है, अफसोस की बात है। और ये बच्ची, क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल को देख के कल को ये बोलेगी कि हाँ भाई मुझे तो बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से? ये ऐसे माहौल इस टाइम पे इसकी उम्र है खेलने की, इस टाइम पे इसकी उम्र है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जाने की, इस टाइम पे जो है वो यहाँ पे अपने फादर की, अपने बाप की फ़ोटो उठाए रो रही है, इल्तिजा कर रही है। और फिर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मतलब मैं अनबाइस रह के बात करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई इनमें से ही जो मिसिंग पर्सन की ये फ़ोटोज़ लगी हैं, कुछ लोग खुद अंडरग्राउंड हो चुके हैं, कुछ लोगों को खुद जो है वो अपना फॉरेन कंट्रीज़ में जा चुके हैं, कोई ईरान में जाके बैठे हैं, कोई अफगानिस्तान में जाके बैठे हैं, किसी ने ज़ाइलम लिया है। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि इनका ID कार्ड, इनकी सब चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। आप इनके घर वालों को बता दें कि भाई ये मिसिंग पर्सन नहीं है, ये तो इस टाइम अमेरिका में बैठा है, एक दफ़ा बात करवा दें। नंबर 1 एजेंसी है हमारी, तो हम तो पूरी दुनिया में ये कहते हैं, तो एक दफ़ा इन्हें बता दें ताकि इन्हें पता हो। लेकिन किसी भी मसले का हल ये नहीं है कि आप ये कहते हैं कि भाई ये कसूरवार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अहमद भाई, ये कौन है? ये जुमक वाले हमारा भाई है। भाई है। कितने साल से आप ये फोटो उठाए फिर ये रहे हैं? 4 महीने हो गए घूमते हैं, 4 महीने बाद। 4 माह से ये गुम। 4 महीने तक घूम हो गया। ठीक हो गया। क्या समझते हैं आप कि ये कहाँ पे गया होगा? ये खुद तो नहीं छुप गया कहीं पे? नहीं वो जुमक वाला है, वो गड्डी नाल कहीं चाय की थी, वो गड्डी नाल खड़ाया। ठीक हो गया। और पता था नहीं, 4 महीने हो गए, कोई आवाज पीछे नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं आई। कोई आवाज नहीं हुआ। तो केरे पास गया, केरे पास गया। अच्छा, इधर बच्ची से ये बात करेंगे। बेटा आप तो थोड़ा एजुकेटेड लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है आपको। मुझे बताएं, आप बलूचिस्तान से हैं, पंजाब के लोगों से कोई दुख कोई दर्द है क्या? आपके साथ वो खड़े नज़र आ रहे हैं? आपको लगता है कि पंजाब के लोग हों, सिंध के लोग हों, KPK के लोग हों, आपके साथ खड़े हैं? जी हाँ, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं पंजाब के KPK के, उनको पता नहीं था कि हमारा दरअसल मसला क्या है। हाँ, वो यहाँ पर हम यहाँ पर आए हैं, धरने दे रहे हैं और मीडिया टीम पर दे रहे हैं, तो उन्हें तब पता चल गया कि हमारा मसला क्या है। और ये भी चीज़ मैं क्लियर कर दूं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया एक तो हमें कवर ये इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रहा, और जब प्रोटेस्ट को कवर करने आए तो ये बताया गया कि किसी एजेंडे के थ्रू ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बताया गया कि शायद ये कहते हैं कि पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए हमें, शायद ये बताया गया। मतलब पाकिस्तान के जो दूसरे लोग हैं, बलूचिस्तान के अलावा जितने भी कम्युनिटी है, पंजाबी, पश्तून या सिंधी कम्युनिटी, उन्हें ये बताया गया कि भाई ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। नहीं, मैंने इनसे भी, इस बच्ची से भी बात की, ये यहाँ पे मौजूद भाइयों से भी
बात की, कोई तो नहीं, कोई भी ये नहीं कह रहा कि हमें पाकिस्तान से नफरत है या पाकिस्तान के, वो तो यही कहते हैं कि भाई हमें हमारे भाई दे दो, और वो ये भी नहीं कह रहे कि हमें हमारा हक दे दो, कोई कोयला दे दो, कोई गैस दे दो, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो घरों से उठाया गया है जिन लोगों को वो वापस दिया जाए। मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े चैनल हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, और बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, तो क्या यहाँ पे आते हैं, आपकी बात करते हैं? नहीं, यहाँ पर शायद जो मीडिया टीमों को भी उन लोगों ने धमकियाँ दी होगी शायद कि यहाँ पर ना, इस वजह से जो आगे कैंप लगी हुई हैं वहाँ पर तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माँ हैं बैठी हुई सर्दी में कड़कते हैं, यहाँ पर आए ज़रा आप 1 घंटे रात को गुजारे तो आपको पता चलेगा। इन बूढ़ी माओं को चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है, हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, फिर भी यहाँ पर बैठे हुए बोले हम यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमारे ये बेटों को लेकर ना आए, वो ठीक हो गया। उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें, मैं कहता हूँ वहाँ तक नहीं जाता। फिर लोग कहेंगे कि घर का मसला बाहर क्यों बताया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो बड़े अलमबरदार हैं, मीडिया में बहुत से लोग हैं, हिम्मत तो करें एक दफ़ा बोलने की, यकीन माने कि जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आगे आ जाइए, आप कहाँ से हैं? मैं सिंध लाड़काना से आया हूँ। लाड़काना से आए हैं, तो ये बलोच कम्युनिटी के प्रोटेस्ट में आप क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे साथ है, ये मिसिंग पर्सन वाले हैं। मैंने कहा इसका कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है। इसका वालिद साहब है तो 2 साल की वफात के इसके सदमे में, ठीक इसकी हो। अम्मी है 9 साल इनका इंतजार करे, उसके घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, इसका 9 साल अम्मी इंतजार से। मेरा दोस्त है, मैं इसलिए निकल गया, मैं कुर्बानी ये देने इंसानियत है। देखें, आज हम इनके दर्द में खड़े होंगे, आज इस बहन, इस बेटी के दर्द में खड़े होंगे, कल को अल्लाह ना करे मेरे पे या किसी पे मुश्किल वक्त आएगा तो ये लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे शायद आपकी सोच नहीं है। और ये चीज़ तो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, खुद मैंने इस चीज़ को फेस किया है कि जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई, जब हमें मतलब ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो अच्छा, क्या कहना चाहेंगे भाईजान? आने वाले टाइम में आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अदारे आपकी बात सुनते नजर आ रहे हैं? हमारे इदारे से कोई मुतालबा नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा। ये इदारा था आर्मी वाले के हाथ में, ये मुझे यकीन है। हमारे बंदे इतने उठाए, 15 जनवरी लाड़काने से 5 बंदे उठाए हैं। ये इदारे करते क्या है? हम दहशतगर्द हैं, हम इंडिया से पैसे लेते, आपको पता है। इल्जाम आप पे वैसे ये लगाया जाता है। हाँ, दहशतगर्द। देखो हमारे पास चौपल एक ही कपड़े से हम आए हैं, खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। किराया मैंने एक बकरी का दोस्त था, उसका भेज के इधर आया हूँ। अभी क्या करें, हम दहशतगर्द हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं। और लेट्स सपोज अगर हैं, मैं देखें दोनों तरफ की बात करता हूँ, लेट्स सपोज ये दहशतगर्द, ये बहन दहशतगर्द, लेट्स सपोज, तो भाई आप सबूत लेके आए और हमें बताएं कि ये देखें ये सबूत है, हम खुद इनके खिलाफ बात करेंगे। लेकिन सिर्फ इल्जाम लगा देना, कल को मेरे पे इल्जाम लगा दिया जाएगा ये फंडिंग पे है, कल मतलब सिर्फ जी भाई छोटा भाई है, 18 साल उम्र है। छोटा भाई माँ बीमार है, बड़ा भाई बाबा आ गया, वो सर्दी था 4-5 जड़े इथे बैठे। हाँ। सर्दी गुजारा करे, सर्दी में बैठे हुए 4-5 सर्दी था 4-5 जड़े इथे गुजारा करे। ठीक है। वो तो सर्दी बड़ा भाई चाचा था, माँ बीमार है, वो तो इस 18 साल उम्र है, ये भाई गुम गया, उस नाल बीमार थी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो भी लोग देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, क्या इनके फेस देख के, इनकी बातें सुन के आपको लगता है कि ये दहशतगर्द हैं? इनकी बातें सुन के लगता है कि ये कोई फॉरेन एजेंसी या फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहे हैं? मतलब इन्हें तो मैं गारंटी से कहता हूँ इधर जितने भी ये लोग मौजूद हैं, इसे मैं इन्हें ये भी नहीं पता होगा फॉरेन एजेंडा होता क्या है, इन्हें ये भी नहीं पता होगा। लेकिन आप लोग, मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली फॉरेन एजेंडे के हाथों यूज़ हों। जब हम अपने यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, हम इन्हें राइट्स नहीं देंगे, जब हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, तो ज़ाहिरी बात है यूनाइटेड नेशन तक बात जाएगी, जो कि जा चुकी है। ज़ाहिरी बात है दूसरे कंट्रीज़ को बात करने का मौका मिलेगा। फिर हम कहते हैं कि भाई इंडिया साजिश कर देता है, फिर हम कहते हैं जी वो अपना यूनाइटेड नेशन में जो उनसे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है। हम नवाबशाह से आया है, मेरा लड़के को सेबी डाटर में पकड़ लिया है पुलिस ने। किसने? पुलिस ने। ठीक है। थाने में हो गया, उससे बाद बोले मेरे से निकल गया है। भाई किधर गया है? बोले कि एफसी ने लेके गया है। अच्छा, यानी एक दफा थाने लेके गए और वहां से कहा हमने छोड़ दिया। छोड़ दिया, फिर वो एफसी के पास है, एफसी ने एजेंसी को दे दिया है। अभी हम नवाबशाह से आया है, अभी मेरे को इधर तकरीबन 2 महीना हो रहा है। कुछ इंसाफ नहीं होते हम लोगों के साथ, हम लोग किधर जाएं, किसको बताएं? ये हम पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं, हमारा बाबा दादा सारा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, बलूचिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, फिर भी बोले तुम पाकिस्तानी नहीं है, फिर हम जाएं किधर? मेरे घर पे 2 दफा रेड किया, मेरे घर पे 2 दफा मुझे धमकी मिली है, तुझे मारेंगे, जब भी जो सिंध में आएगा तुझे मारेंगे। मैंने गलती क्या किया? मैंने अपने दोस्त का फर्ज निभाया ना। सर मैं ये कहता हूँ इन्हें धमकी देने की बजाय, मुझे पता है कि मेरे साथ भी जो चीज़ें होंगी या हो सकती हैं, लेकिन धमकी देने की बजाय इन्हें आप ये बता दें कि ये बंदा किधर है, बस ये बता दें, वो घर बैठ जाएगा। और क्या करेगा?
आप इन्हें बताएं इनका बेटा किधर है, वो घर बैठ जाएंगे। इस बच्ची को बता दें उसका भाई किधर है, वो उसे जरूरत ही नहीं इस ठठरती सर्दी में यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करने की, वो घर बैठ जाएगी, बात खत्म। मतलब धमकियाँ दे के और डरा के क्या, लेट्स वो दूसरे नंबर पे मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, क्या धमकी देने से इनके दिलों में आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं? क्या धमकियाँ देने से इनकी जो दिल में नफरत है वो दूर कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सी बातें हैं जो करूँगा शायद तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, कितने टाइम से ये? मैं 12 साल से ढूंढ रहा हूँ। 12 साल से ढूंढ रहे हैं? ये देखें जी, इसको मेजर ताहिर, लेफ्टिनेंट कर्नल तारिक साहब ने वहाँ से उठाया। फिर आप कैसे, मतलब एक सवाल है ना, आप कैसे कह सकते हैं किसी पे भी इल्ज़ाम लगा? उसकी भी जवाब देता हूँ। जब उठाया तो उन्होंने कहा कि आप अपने वालिद की शनाख्ती कार्ड लाओ, हम इसे रिहा करते हैं। ठीक है। जब हमने शनाख्ती कार्ड लाया तो उन्होंने कहा कि शफीक मेंगल के कहने पे, जो है ISI का वहाँ कारिंदा है, उसने कहा कि शफीक मेंगल ने कहा इसे छोड़ो नहीं, मुझे मेरे हवाले करो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि जब आप बगैर शवाहिद के, बगैर सबूत के लाइक अगर बात, आज मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वो FIR नहीं कर रहे थे, फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हुक्म पे उसके FIR भी हो गई है। अच्छा, आपके पास FIR मौजूद है? मेजर और कर्नल के आपके पास भी FIR मौजूद है? मौजूद है, हमारे सबके पास मौजूद है। मौजूद है। कमीशन का 5 साल का पेशी भी। आपका ये कौन है? बेटा है? हमारा बेटा है सर। ये देखें जी, आपको एक और दहशतगर्द से मिलवाते हैं। ये दहशतगर्द है, वाइट में नहीं। स्कूल से ओए, ये आप इनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको ये चेहरे से नज़र आते हैं। और फिर मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि भाई अगर कहीं पे कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो भाई उसको सबूत के साथ सामने लाओ, डराओ नहीं, धमकाओ नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ इल्ज़ाम मेरे पे लगाए जाएंगे, मैं जानता हूँ मुश्किलात मेरे पे आएंगी कि मैं इस्लामाबाद क्यों आया, मेरे पे तरह तरह के टैग लगाए जाएंगे, लेकिन आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता हूँ, बलोचिस्तान की बेहतरी की बात करता हूँ, पंजाब की बेहतरी की बात करता हूँ, की बेहतरी की बात करते हैं। जबरदस्त। हम पाकिस्तान को मस्जिद की तरह मुकद्दस समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें, मेरा भाई खुद आर्मी में है। क्या बात है, मतलब हम नफरत नहीं करते, हम मोहब्बत की बात करते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों को आपने मिसिंग पर्सन रखा है, जिन लोगों की आप मतलब इस तरीके से ये आवाज़ हम उठा रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आके आप इनके साथ खड़े हों, इनका दर्द समझें। यकीन माने, आज आप इनका दर्द समझेंगे, आज आप इनके साथ खड़े होंगे तो कल को ये लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लेकिन अगर हम इसी तरीके से बात करते रहे, इसी तरीके से ये चीज़ें इस तरीके से सामने लाते रहे कि भाई ये एजेंट है, वो एजेंट है, ये देखें यहाँ पे लोग तो तरस रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। क्या ये एजेंट लगते हैं आपको? क्या ये दहशतगर्द लगते हैं आपको? क्या आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई ये इनके वालिद साहब, आपने इनकी स्टोरी देखी होगी। 60 साल की उम्र में इनके वालिद साहब को उठाया और अदालत के हुक्म पे दो फौजी अफसरान के ऊपर, ये 2012 की अखबार है, ये देखें 5 मई 2012 की अखबार है, और 2 फौजी अफसरों के ख़िलाफ़ अदालत के हुक्म पर, कानूनी तरीके से अदालत के हुक्म पर, ये इनके वालिद साहब का नाम है अली हसन, ठीक है, और 2011 के अंदर वर्ड से लापता किया गया था, और ये 2012 की अखबार है। और 2 फौजी, ये देखिए FC के 2 मेजरों के खिलाफ FIR हुई है अदालत के हुक्म के ऊपर, लेकिन अभी तक आप ये बताएं, आपका अगर आपके वालिद की बात करें, इनके भाई की बात करें, इनके बेटे की बात करें, क्या ऐसा काम करते हैं आप लोग कि जिसकी वजह से आपको मुश्किल है? एक मिनट में आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमने कोई जुर्म नहीं किया। ठीक है, सिर्फ जुर्म हमारी ये है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उसकी सज़ा हमें दी जा रही है, और कोई जुर्म नहीं। ये हमारा दर्द दिल है, खुदा की कसम, ये हम आपके सामने रख रहे हैं और रखता चला जा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि कभी मिट्टी में जरखीज़ी आएगी। आप सोचें 60 साल का बंदा क्या कर सकते हैं? एक सोचने वाली बात है। 60 साल का बंदा क्या दहशतगर्दी करेगा? वो क्या ही कर सकते हैं? वो तो अपने मैं तो स्टांस ही एक रखता हूँ, मेरा एक ही स्टांस है कि भाई अगर इनमें से, मैं इनके सामने, ये नहीं कि इनके सामने इनकी तारीफ और बाद में कुछ और, इनके सामने खड़ा होकर कहता हूँ अगर इनमें से कोई दहशतगर्द है सख्त से सख्त सजा दी जाए, अगर इनमें से कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन अगर नहीं इन्वॉल्व, अगर वो हक की बात कर रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, और अगर वो जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान की अदालत किस लिए बनाई गई है?
پاکستان کے ادارے کس لیے بنائے گئے ہیں انہیں سامنے پیش کیا جائے اور پوری دنیا کو میسج دیا جائے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے, یہ دیکھیں یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے, ہم نے یہ ود پروف انہیں پکڑا ہے اور ہم انہیں سزا دے رہے ہیں. اتنی سی میری ڈیمانڈ ہے. اور پھر سے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گا کہ بھائی مین اسٹریم میڈیا, حامد میر صاحب جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں, بڑا ٹھیکیدار بنتے ہیں پاکستان کے, بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں پاکستان سے محبت کے. کیا آپ کو یہ پاکستانی نظر نہیں آ رہے؟ کیا آپ کو یہ پاکستانیوں کا درد, میری ماؤں میری بہنوں کا درد نظر نہیں آ رہا؟ میں جانتا ہوں, میں پھر بار بار بول رہا ہوں کہ شاید میرے لیے بھی یہ چیزیں سامنے, مطلب میرے لیے مشکل بنے, بہت سی چیزیں ہوں, لیکن میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں. میری یہ ذمہ داری ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, بلوچستان کی ماؤں, بلوچستان کی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ایز اے پاکستان کا شہری, میرا یہ حق ہے, میری یہ ذمہ داری ہے جو کہ میں پوری کرتا نظر آ رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس آواز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, پاکستان کی انسانیت کی اور انسانیت کی بہتری کے لیے بات کریں. یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور بہت شکریہ.